الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ کون سے 5 خواب ہیں جو انسان کو اس وقت دکھائی دیتے ہیں جب اس کے پاس دولت آنے والی ہوتی ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لے کہ جب انسان کے دن پھرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیر مال و دولت عطا کرنے والا ہوتا ہے، تو ایسے انسان کو یہ 5 چیزیں خواب میں ضرور دکھائی دیتی ہیں۔ یہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ 5 کام جن کو کرنے والوں لوگوں چند ہی دنوں میں خوشحال ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے امیر ترین ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے، جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے ہی دلچسپی سے انجام دیتا ہے، لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو بربادی کی طرف لے کر جاتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور جبکہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان کو آسانی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے، لوگوں کو خوبصورت زندگی گزارنے کی نصیحت کر رہے تھے اور خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو دنیا کے امیر نہیں بلکہ میں نے دونوں جہانوں کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی ہے، انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی ہے۔ جب میں نے ان سے دونوں جہانوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے، اتنے امیر کیسے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 عمل کیا کرتے تھے، ہم نے 5 عمل ایسے کیے جو کہ ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کریں گے۔ ان 5 کاموں نے ہمیں بھکاری سے بادشاہ بنا دیا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ہمیں بھی بتاؤ وہ 5 عمل کون سے ہیں، تو انہوں نے وہ 5 عمل بتا دیے۔ پیارے دوستو، یہ 5 کام ضرور کرنا اگر تم دنیا اور آخرت کا میری ترین بنانا چاہتے ہو، صرف دنیا کے ہی نہیں اگلے جہانوں کے بھی، یعنی دونوں جہانوں کے اگر تم امیر بننا چاہتے ہو، یہ 5 کام زندگی میں ضرور کر لینا۔ نمبر 1 تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو، یعنی رزق ملتا ہو، تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ پرندوں کو دانہ ملتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو۔ فرمایا گیا کہ جب پرندے تمہارے گھر کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آیا یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا کہ ان کے لیے اناج رکھا کرے، انہیں دانہ ڈالا کرو۔ اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احسان کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے، یعنی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کا احساس کرتی ہے، جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یا پانی پی کر جس گھر سے جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری رحمتی کا واسطہ، جس طرح ہمارے لیے اس گھر کے لوگوں نے رزق کا اہتمام کیا، تو بھی اس گھر کے لوگوں کا اہتمام کر۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے ہی یہ ایک عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتے کی ڈیوٹی لگا جاتی ہے۔ صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ہی وہ فرشتے رہتے ہیں۔
पहला फरिश्ता उस इंसान की इज्जत बढ़ाने के असबाब पैदा करता है, दूसरा फरिश्ता उस इंसान का रिस्क बढ़ाने के असबाब पैदा करता है, जबकि तीसरा फरिश्ता उसे मुसीबतों से बचाने के असबाब पैदा करता है। सुभान अल्लाह। पूछा गया कि हज़रत आखिर वो नेक अमल है कौन सा, ये इतना फ़ायदेमंद अमल है कौन सा? तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, वो है परिंदों को दाना डालना। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उस शख्स ने कहा कि उनका दूसरा अमल यानी दूसरा काम जो है वो यह था कि वो गरीबों की मदद किया करते थे। जो शख्स गरीबों की मदद करता है वो जिंदगी में कभी भी गरीब नहीं होता। प्यारे दोस्तों, बंदे की इबादत बंदे को उस मुकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीबों की मदद पहुंचाती है, जहां गरीबों की खिदमत पहुंचाती है। जब गरीबों की खिदमत की बात आती है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने वाला सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर अच्छा हुक्मरान दुनिया में कोई नहीं आया। इसी तरह सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई बादशाह नहीं आया। सखावत में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई हुक्मरान नहीं आया, और इल्म फरासत में हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अच्छा हुक्मरान कोई इस दुनिया में नहीं आया। और गरीबों की मदद की जब बात आती है तो कंधे पर बोरियां लाद कर ले जाते हैं और गरीबों की मदद किया करते थे, गरीबों को खाना खिलाया करते थे। एक गरीब था जिसकी बीवी हामिला थी यानी प्रेग्नेंट थी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था, जबकि घर में 1 रुपया भी नहीं था। अब ये लोग परेशान थे कि पैसा एक भी नहीं है, जबकि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है। वो अपने घर के बाजू रहने वाले यानी हमसाइयों के पास गए कि हमें कुछ कर्जा दे दो। उन्होंने कुछ ना दिया तो उस गरीब के जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मदीने में चला जाऊं, हज़रत सैयदना उमर फारूक के पास चला जाऊं, उनके सामने जाकर फरियाद करूं, अर्ज़ करूं कि वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। वो गरीब शख्स अपनी हामिला बीवी को मदीने की तरफ लेकर जा रहा था। चलते चलते जैसे ही मदीने की सरजमी पर कदम रखा, शाम हो गई, रात ढलने लगी, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। उसने बीवी को कहा कि क्यों ना यहीं खेमा लगाकर रात बसर कर लेते हैं, सुबह होते ही उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चले जाएंगे। रात का दूसरा पहरा जब आया तो बीवी दर्द से चिकने लगी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है और ये बीवी को हौसला दे रहा है। चलते ही उमर के पास अपना मसला हल करवाते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये आदत थी कि आप देर रात तक मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे। आपने फरमाया करते थे कि मेरी हुक्मरानी में अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हिसाब उमर को देना पड़ेगा। उस रात भी हज़रत उमर मदीने की गलियों में गश्त फरमा रहे थे। आपने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूर से देखा कि एक खेमे में आग जल रही है। आपने गुलामों को भेजा कि जाके देखे वो कौन बैठा है रात की इस पहर, कोई मुसाफिर तो नहीं है। गुलाम उस शख्स के पास गया। उसने कहा कि मेरी बीवी हामिला है, मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है। गुलाम ने वापस आकर हज़रत उमर को सारी बात बताई। हज़रत सैयदना उमर फारूक दौड़कर गए, अपनी बीवी को उठाया और कहा, उठो, अगर तुम्हें सवाब मिल रहा है तो क्या तुम लेना चाहोगी? अगर तुम्हें नेकियां मिल रही हो तो लेना चाहोगी? तो हज़रत उमर की बीवी ने कहा कि क्यों नहीं, मैं तो सवाब लेना चाहूँगी। तो फरमाया कि उठो, एक शख्स की बीवी तकलीफ़ में है और थोड़ी देर में बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आने ही वाला है। उठो और थोड़ी देर के लिए
दाई बन जाओ। तो उन्होंने ज़रूरत का सारा सामान उठाया और सैयदना उमर फारूक से कहने लगी कि आप थोड़ी सी लकड़ियाँ कंधे पर उठा ले। आपने कंधे पर लकड़ियाँ उठाई और वो जा पहुँचे जहाँ उस गरीब का खेमा था। हज़रत उमर फारूक की बीवी अंदर चली गई जहाँ वो हामिला और दर्द से चीख रही थी। तो हज़रत उमर बाहर उस गरीब शख्स के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। उस गरीब शख्स ने ये समझा कि माँ गुलाम है, उस गुलाम की बीवी दाई है और एक उसका शौहर है और ये यहाँ का गुलाम है। तो उस गरीब शख्स ने हुक्म चलाने शुरू कर दिए, ओ जल्दी जाओ, लकड़ियाँ लेकर आओ। आप दौड़कर जाते और लकड़ियाँ लेकर आते। जल्दी करो, आग जलाओ। आग को फूंके मारते और आग जलाते। अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, उसने हज़रत उमर फारूक के साथ नौकरों जैसा सलूक किया। वो नादान ये नहीं जानता था कि जो मेरे सामने ये जो शख्सियत खड़ी है ये खुद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। फिर एकदम से खेमे के अंदर से हज़रत उमर फारूक की बीवी की आवाज़ आई कि या अमीरुल मोमिनीन, आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपके दोस्त के बेटा अता किया है। जैसे ही उस गरीब शख्स ने सुना या अमीरुल मोमिनीन, तो उस गरीब ने सुना उसके पाँव तले ज़मीन निकल गई और वो कहने लगा कि क्या ये अमीरुल मोमिनीन है। तो फ़ौरन वो कदमों पर गिरा और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे माफ़ कर दे। ये बदबख्त आके ना पहचान सकी कि आप कौन हैं। मुझे आप माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे उठाया और आपने सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगे कि ओ बतू, तुझे पता नहीं कि ये मदीना तुल मुनव्वरा है, ये मेरे करीम आका का शहर है। यहाँ अमीरों के नहीं, यहाँ तो गरीबों के इस्तकबाल होते हैं। यहाँ तो गरीबों को इज़्ज़तें मिलती हैं। यहाँ तो गरीबों की मदद की जाती है। यहाँ तो गरीबों को बादशाह बनाया जाता है। तो गरीबों की मदद करने वाला शख्स ज़िंदगी में कभी गरीब नहीं होता। तो वो कहते हैं कि हमारे अमीर बनने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि गरीबों की मदद किया करते थे। नंबर 3, तीसरा काम जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो अपनी औलाद को हलाल का लुक़मा खिलाया करते थे। चौथा काम वालिदैन की खिदमत किया करते थे और पांचवा काम नमाज में सुस्ती नहीं किया करते थे। उन लोगों ने कहा कि हमने आज भी इन 5 बातों का दामन मजबूती से पकड़ा हुआ है, इसीलिए हम आज भी दिन ब दिन बुलंदियों पर जा रहे हैं। हमने सिर्फ दुनिया में ही तरक्की नहीं की बल्कि हम आखिरत के लिए भी ये काम कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये वो 5 काम हैं कि जिनको करने वाले कभी गरीब नहीं रहते और रोज़ बरोज़ अमीर से अमीर होते जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि जब किसी शख्स के हाथों में बेइंतहा दौलत आने वाली होती है तो उसे ख्वाब में कौन सी 5 चीज़ें नज़र आती हैं। प्यारे दोस्तों, ये वो 5 काम हैं कि जिनको करने वाले कभी गरीब नहीं रहते और रोज़ बरोज़ अमीर से अमीर तर हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि जब किसी शख्स के हाथों में बेइंतहा दौलत आने वाली होती है उसे ख्वाब में कौन कौन सी 5 चीज़ें नज़र आती है। प्यारे दोस्तों, ख्वाबों की ताबीर बताने वाली बुजुर्ग बताते हैं कि अगर कोई शख्स हाथ में पहाड़ देखता है या खुद को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखता है, इसका मतलब है कि उसे दौलत, शोहरत और बुलंदी मिलने वाली है। अगर कोई शख्स ख्वाब में मछली देखता है या खुद को मछली खाते हुए देखता है तो इसका भी यही मतलब है कि इसी तरह ख्वाब में तख्त देखता है या खुद को तख्त पर बैठे हुए देखना, घोड़ा देखना,
یا گھوڑے کی سواری کرنا اور خواب میں اونٹ دیکھنا یا اونٹ کی سواری کرنا، تو ان سب خوابوں کی تعبیر یہی ہے کہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار دولت سے نوازنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان 5 کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کسی کا لکھا آمین قبول ہو جائے۔ اللہ حافظ۔